नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। काफ़ी दिनों बाद लेग का वर्कआउट किया तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कुछ ऐसी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और फाइनली आज से वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं अभी HSF का कॉम्पिटिशन लड़ के आया हूँ और उसके बाद मैंने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया था। बीच में मेरा बर्थडे आ गया तो हम सब कुछ खाना वाना चालू कर दिया था उल्टा सीधा। आप देख भी सकते हो फैट आ गया वापस से। तो आज से हम अपना वर्कआउट शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। जो नया वर्कआउट सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आज मैं अभी वर्कआउट करूँगा लेग्स का, क्योंकि लेग्स मैंने बहुत टाइम से ट्रेन नहीं किया था। तो अभी जाके लेग्स का वर्कआउट ट्रेन करता हूँ और उसके बाद करते हैं कुछ डिस्कशन वीडियो सीरीज़ के रिलेटेड। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, देखते रहिएगा। मिलते हैं आगे वर्कआउट के बाद। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. इसी के साथ आज का वर्कआउट हुआ ख़त्म। काफ़ी दिनों बाद लेग का वर्कआउट किया तो बहुत पेन हुआ। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं घर पे और लेते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील और दिखाता हूँ आपको आगे का। तो मिलते हैं घर पर, स्टे ट्यून। तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कुछ ऐसी है। ये अपने पास है 60 ग्राम ओवरनाइट सोक्ड ओट्स, और उसमें मैं डाल रहा हूँ 30 ग्राम्स पीनट बटर पाउडर, और उसके साथ डालना 1 स्कूप वे प्रोटीन। आज फ्रूट कोई घर पे है तो कुछ और ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो बस जल्दी से अब इसको मिक्स करके खा लेते हैं और मिलते हैं आपको अपनी आगे के सफ़र पर।
हुआ ऐसा कि मैं अपना पोस्ट वर्कआउट भी लेके आया ऊपर अपने कमरे में, और मुझे थोड़ी सी नींद आई थी। मैंने सोचा लेट जाता हूँ, थोड़ा लेटा तो 2.5-3 घंटे ऐसे ही निकल गया, पता नहीं चला। अभी उठा जस्ट, और उठते ही मैंने मतलब एक सर्विंग सत्तू का लिया, और अब मेरे को अपना मील प्रिपेयर करना है और नहाना है, तो जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो ये है मेरी मील, इसमें है सोया चंक्स, मटर और मैगी। मैं यहाँ पे आटा मैगी यूज़ कर रहा हूँ। तो जल्दी से अपनी मील ख़त्म करके मिलता हूँ आपसे फिर से। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितना प्रोटीन खाना है या कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जो मिस्टेक्स जनरली हम लोग कर देते हैं अपने कोई भी जो प्रोग्राम है या फिर कोई भी चीज़ हम फॉलो करते हैं, कोई भी हमारा गोल है, उसके पीछे हम जब लगते हैं तो हम जो मिस्टेक्स करते हैं मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सेट योर गोल्स, मतलब आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, और वो भी सीरियस गोल्स। सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आपका कोई कॉन्टेस्ट है, जिसका कॉम्पिटिशन है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा कि ये मेरा गोल है, ये मेरे को अचीव करना है। तो उसके बाद आपको वो एक ड्राइविंग फोर्स देगा, मोटिवेशन देगा कि हाँ, सपोज आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है और आपको वेट लॉस करना है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरे को 3 महीने में ऐसे ऐसे अपना वेट लॉस करना है, तो ये आपको एक ड्राइविंग फोर्स देगा, एक मोटिवेशन देगा कि हाँ भाई मेरे पास इतना टाइम है और इतने टाइम में मुझे इतना वेट लॉस करना है, तो उस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करूँगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि राइटिंग डाउन योर प्रोग्राम। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी वेट लॉस मसल बिल्डिंग प्रोग्राम आपने सेट किया है, या फिर आपका कोई भी ज़रिया है जिसके थ्रू आप ये अपना गोल जो है आपको सेट किया है वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अभी इस हफ्ते कुछ फॉलो किया, अगले हफ्ते कोई और प्रोग्राम फॉलो कर लिया, उसके अगले हफ्ते कुछ और कर लिया, तो वो आपको वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलते। फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि भाई मैं जिम छोड़ देता हूँ, या फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या मेरे से नहीं होगा, या कुछ ना कुछ ब्लेम करना चालू कर देते हो। तो मेन जो चीज़ है वो है कि आप अपने जो भी प्रोग्राम है उसको लिख कर रखें एक जगह, चाहे तो वो आपका जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो वो, या फिर जो भी आप वर्कआउट शेड्यूल या फिर वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो वो एक जगह लिखा होना चाहिए, ताकि आप उसको बार बार पढ़ते रहें कि भाई कि क्या मैंने प्रोग्राम लिखा था और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ उस प्रोग्राम में, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ उस प्रोग्राम के अनुसार या नहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल इसीलिए क्योंकि कई लोग इससे एग्री करेंगे और कई लोग नहीं, इससे एग्री नहीं भी करेंगे। तो जो अगला पॉइंट है वो है मेक मिस्टेक्स। मेरा ये मानना है कि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप संभलना नहीं सीखेंगे। तो संभलना सीखने के लिए आपको गिरना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि अपने ऊपर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, मिस्टेक कीजिए, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब गलती कहाँ होती है कि जब हम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहते हैं, मतलब आप एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करेंगे तो वो गलत है। बाकी अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं और उसमें आपसे गलती होती है या फेल होते हैं तो वो गलती नहीं है, तो उस फेल होने से आप कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप मिस्टेक्स करते रहनी चाहिए, गलतियाँ आपको सिखाती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि स्टार्ट बाय फॉलोइंग अ बेसिक अप्रोच। बहुत ही ज़रूरी ये है कि आप जब भी अपना कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी डाइट आप फॉलो करें तो वो बहुत ही बेसिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारी फैंसी एक्सरसाइज, फैंसी डाइट्स देखते हैं और फिर आकर पूछते हैं सर भैया ये वाली एक्सरसाइज कर लूँ, ये वाली एक्सरसाइज, या ये डाइट खा लूँ, ये वाली चीज़ खा लूँ। तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले आपकी जो बेस है, जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, उनकी फॉर्म, उनकी टेक्निक क्लियर होगी तो आपको वो एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है या वो डाइट हेल्प कर सकती है। पर जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कितना खाना है या आपकी एक्सरसाइज टेक्निक या आपकी फॉर्म्स कैसी है, फॉर्म एक्सरसाइज की कैसी है, और आप फैंसी एक्सरसाइज या फैंसी डाइट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपने जो बेसिक है उस पर स्टिक करें और उसको परफेक्ट करें पहले, फिर उसके बाद कोई भी फैंसी एक्सरसाइज या फैंसी डाइट्स पर जाएँ। जो लास्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी।
मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, बहुत अच्छी डाइट रखते हैं और सब कुछ अच्छा करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, सब कुछ अच्छी तरह फॉलो कर रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इस कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि आपको अगर सपोज़ कीजिए आपने 3 महीने का कोई प्रोग्राम है, 6 महीने का कोई प्रोग्राम है या फिर 1 साल का कोई प्रोग्राम है और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और आपने देखा 2-3 महीने बाद आपको कुछ रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो बहुत जल्दी लोग क्या होता है उस प्रोग्राम से या फिर उस डाइट से पीछे हट जाते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा, फ़ायदा छोड़ो है। पर इसी चीज़ को आपको कंसिस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि मसल्स बिल्ड करना या फैट लॉस करना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि उस किसी एक बंदे की 6 महीने में बॉडी बन गई तो या फिर फैट लॉस हो गया तो आपका भी होगा। कि क्या पता आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, क्या पता आपका बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे जिस तरह से दूसरे बंदे का रिस्पॉन्ड करे। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। बहुत सारे लोग आते हैं 2 महीने 3 महीने आके फिर छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। हम एक प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्राम पे स्टिक करके उस पर कंटिन्यूस उसको फॉलो करते रहें, उसी में हम प्रोग्रेस करें तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आगे अपनी जो जर्नी है, अभी मैं गेनिंग पे हूँ, तो अपनी जर्नी में फॉलो जो भी जर्नी होगी मैं दिखाता रहूँगा आपको। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।